Uh, Good morning, everyone. So total 7 students have joined the meeting. Without wasting much more time, we start today's class. And yesterday we stuck on this point, modifying a single cell. And I think in early class also, we found the problem in this point through this in this practical. How can we access a particular element in data frame? So there are different methods through which we can access an element in the data frame, but this is also one of the method through which we can access. But as yesterday and what earlier also we found problem, this is showing syntax errors, but I don't know. And even what I found on net also, and let me check here also for in front of you. Just give me only few minutes to give you demo. This screen is visible to all of you, this browser Yes, window. sir. Okay. So in this you can coding what the site is Yes, she-corner.com, and here you can see the modifying a row or to change the value of a row. But how can we change the particular element? So what is the syntax? Different methods are there. We can use loc function, we can use add function, we can use iat. But actually this what method is given in our book. And yesterday I tried, but the Python is showing error. And let me show this syntax here also. The name of data frame, you can give any data frame, df, the name of data frame here, then dot operator, then the name of column. You can see it is here, the column name, and the row name inside the what square bracket and within single quotes. So it is a syntax to access a element, to access an individual element from the data frame, and after accessing it we can change its value. So simple. The same syntax is given here, जैसा हमारी बुक में दिया हुआ है. What? Data frame का name, then column name, then row name inside the square bracket, and the same syntax is given here also in the net website. But when we tried to demonstrate this practically, so it was showing error yesterday, and let me do it one more time. So it is our data frame, और इस डेटा फ्रेम के अंदर वी ट्राई टू एक्सेस, ये हमारी डेटा फ्रेम है, और इस डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग इस कोशिश करते हैं Q2 को एक्सेस करने की. कैसे करेंगे हम लोग इसको? अकॉर्डिंग टू व्हाट सिंटेक्स, df dot then column name, the column name is 2015, or you can take any column. 3 columns are there, so we are taking this 2016, and within square bracket the name of any row. तो ये रो के जो इंडेक्सेस हैं क्या है? Q1, Q2, Q3, Q4 and Q11. So we try to access the Q2. ठीक है, but it is showing, you can say, dot the invalid syntax, and I don't know what is the problem in this code, क्या इसमें एरर है, लेकिन everything is fine. जो हमारी बुक में दिया हुआ उसके हिसाब से भी यही करना है. क्या करना है? डेटा फ्रेम का नाम हमको लिखना है, then we have to write the name of column, then we have to write the name of row inside the square bracket, and in this way we can change the value, no problem. But still we have lots of options, lots of methods are there to access individual element from the data frame. How can we access? Then we use the add function. Print, मैं पहले access करता हूँ what single element from the data frame.
ठीक है, कैसे एक्सेस करेंगे इसको, df डॉट एड फंक्शन, एड फंक्शन लगाएंगे और उस एड के बाद आप क्या यूज करेंगे, just write the name of row and column. Suppose I want to access this quarter 3 row के अंदर, तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, just write the name of row. The name of row is Q3 quarter 3, then comma, and I want to access within this quarter 3 row the element which is coming under the this column 2017. तो आप क्या करेंगे 2017, ठीक है। In this way we can access individual element, and let's try to display it. It is showing again error, एक मिनट, add function, yes, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द डेटाबेस इट इज द 458, ठीक है। तो जस्ट व्हाट नेम ऑफ डेटा फ्रेम, देन ऐड फंक्शन, एंड विद इन लिस्ट राइट द नेम ऑफ रो एंड द कॉलम फॉर विच वी वांट टू एक्सेस। क्योंकि जब हम किसी भी पर्टिकुलर इट इज स्ट्रक्चर ऑफ, यू कैन से द 2D स्ट्रक्चर। 2D में क्या होता है, रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। तो उस 2D स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रो का नाम लिखेंगे। तो रो का नाम क्या है, Q3। अब इस Q3 के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज है, वी हैव 1 वैल्यू फॉर 2015, सेकंड वैल्यू फॉर 2016 एंड थर्ड वैल्यू फॉर 2017। so which value we want to access, in this way we can access the what individual element। और इसको हम लोग सेव कर देते हैं, एक अलग लाइन होगा उससे, कंट्रोल एक्स, इसको सेव किया, इट इज ऑलरेडी फाइल सेव एंड फाइल सेव एज, इसको नाम दिया हमने एक्सेसिंग सिंगल एलिमेंट, ठीक है। So in this way you can see we can access the single element from the data frame, single element from the data frame, this is 458. Now this time if I want to access this 2589, so then how can we access this, the same method will work here। the name of row is Q11, Q11 आप करेंगे इसको, and this 2589 is coming under the 2017, so just the column name and run it, the 2589, in this way we can access। and now how can we change the value, the same syntax will work for to change the value of an individual element। अभी तो हमने केवल क्या कराया हुआ है, इसको डिस्प्ले कराया हुआ है, सिंपल द सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द डेटा फ्रेम, ठीक है, डिस्प्ले हमने करा दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि वैल्यू को हमें चेंज करना है, तो चेंज भी कर सकते हैं, सेम सिंटेक्स यूज होगा। क्या यूज होगा, सबसे पहले डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, द नेम ऑफ डेटा फ्रेम दैट इज df, देन डॉट ऐड फंक्शन, और ऐड फंक्शन के अंदर द नेम ऑफ रो विच यू वांट टू चेंज, हमने करा Q11, और उसके बाद द नेम ऑफ कॉलम, नेम ऑफ कॉलम हम चाहते हैं 2017। तो क्या वैल्यू चेंज होगी Q11 to 107 की 2589, हम चाहते हैं कि इन प्लेस ऑफ 2589 दिस वैल्यू शुड कम 99, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद में चाहे तो डिस्प्ले करा सकते हैं और चाहे तो उसको उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट द सिंटैक्स विल रिमेन सेम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना। तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है, ऐड फंक्शंस है, एलओसी है, आई8 है, आईएलओसी है, और एक सिंटैक्स और हमारी बुक में दिया हुआ, लेकिन वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अगर हमें वैल्यू चेंज करनी है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले डेटा फ्रेम का नाम, देन डॉट ऑपरेटर एट नेम ऑफ रो एंड देन नेम ऑफ कॉलम एंड देन न्यू वैल्यू। उसके बाद फिर इसको हम डिस्प्ले कराते हैं, प्रिंट डेटा फ्रेम आफ्टर changing the value df,
ठीक है, डेटा फ्रेम आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू, नाउ यू कैन सी वैल्यू हैज बीन चेंज्ड। अर्लियर क्या वैल्यू थी 2589, but through this statement we access this element and we change its value. The topic was modifying a single value. अभी हमने सीखा था हम किस तरीके से कॉलम की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम रो की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन द टॉपिक वाज मॉडिफाइंग ए सिंगल कॉलम, सिंगल सेल, सिंगल एलिमेंट। Then yesterday we discussed renaming rows and columns. Renaming rows and columns. हमें अगर रो का नाम या कॉलम का नाम चेंज करना है तो कैसे करेंगे, इसका भी कल हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, रीनेमिंग। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, फॉर दैट पर्पस द पाइथन प्रोवाइड्स दिस फंक्शन, द नेम ऑफ फंक्शन इज रीनेम। ठीक है, रीनेम एंड वी राइट दिस इंडेक्स और कॉलम्स। इंडेक्स अगर हम चाहते हैं, जैसे इसको फ्रेश एक बार रन करते हैं तो आपको और क्लियर होगा, क्योंकि हम लोगों ने कल किया था इसको। तो इट वाज आवर ओरिजिनल डेटा फ्रेम Q1, Q11, Q2, Q3, Q4, these are the rows, and 2015, 2016, 2017, these are the columns. And after rename my data frame, हमने क्या करा, हमने Q11 रो को रिप्लेस कर दिया Q9999 से, हमने Q4 को रिप्लेस कर दिया अगस्त से। किस तरीके से चेंज करते हैं, बाय यूजिंग दिस रीनेम फंक्शन। सो इफ वी वांट टू चेंज द नेम ऑफ रो, तो क्या यूज करेंगे, फॉर दैट वी यूज इंडेक्स। इंडेक्स इज इक्वल टू द ओल्ड नेम ऑफ रो, न्यू नेम ऑफ द रो, ओल्ड नेम ऑफ रो एंड न्यू नेम फॉर द रो। ठीक है, इंडेक्स के अंदर हम क्या देंगे, रो के लिए। हम चाहते हैं कि हमें 2015, 2016, 2015 को भी चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए यूज करेंगे पैरामीटर्स columns. For that we have this parameter columns is equal to, again हम जो values देंगे, all the values must be provided in dictionary। कल हम लोगों ने पढ़ा था जब हम rename function यूज करते हैं तो जो old और new values हम देते हैं वो सब कहाँ होंगी, डिक्शनरी की फॉर्म में आएंगी, की और वैल्यू की फॉर्म में आएंगी। हम चाहते हैं कि 2015 को रिप्लेस हम करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं, ईयर 2015 से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, हम केवल एक वैल्यू चेंज करेंगे, अभी एक वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं। अब इसको फिर से रन करते हैं, हम देखिए व्हाट दिस एंड कॉलम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू 2015 कमिंग। ठीक है, so I forgot this single quotation mark, and now you can see in original data frame the what new old name was 2015 and this old name has been replaced by year y0 y-2015. In similar way we can change the names of other columns also। बस हमें केवल क्या ध्यान रखना है, रीनेम के लिए हम रीनेम फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन रीनेम के अंदर कॉलम्स के लिए हम यूज करेंगे कॉलम्स और रोज के लिए यूज करेंगे इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स पैरामीटर। और जितनी भी हमें ओल्ड और नई वैल्यूज रिप्लेस करनी है, नई वैल्यूज रिप्लेस करनी है, सभी वैल्यूज को हमें कहाँ देना है, डिक्शनरी के अंदर हम लोग देंगे। ठीक है, और फिर साथ में एक पैरामीटर हम लोग और यूज करते हैं, इन प्लेस। इन प्लेस का कोई यूज मुझको बताएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ इन प्लेस पैरामीटर, यस्टरडे वी डिस्कस्ड, विल डिस्कस टुडे आल्सो, लेकिन इसका यूज क्या है इन प्लेस का, बताएंगे कोई बच्चा, ट्राई करेगा इन प्लेस का यूज, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसका। इन प्लेस का यूज इसीलिए होता है कि अपन सेम डेटाबेस के अंदर ही चेंज कर सकें। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट आंसर ये, वेरी गुड। विशाल, आयुष, भैया, थैंक यू। एक मिनट जस्ट मैं इसको अटेंडेंस लेता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ, एक मिनट। यस, so as what you rightly said, in place is equal to true means all the changes will be done, will be available, reflected in the original data frame, and if we skip this parameter or if we write in place is equal to false, so in that case what will happen, तो उस केस में पांडाज एक नया डेटा फ्रेम बनाएगा और उसके अंदर चेंजेस करेगा। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं,
अगर इसको हमने स्किप कर दिया, हमने इन प्लेस को नहीं रखा हुआ है, तो क्या होगा? इसको हम पहले सेव कर लेते हैं एक बार और फिर से रन करते हैं। फ्रेश हमने इसको रन किया तो आप देखिए 2015 2016 2017 2015 1617 एंड ऑल दी रो नेम्स आर आल्सो सेम। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इन प्लेस को हटा दिया है और आपने क्या इन प्लेस इज इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स जितनी भी चेंजेस है ऑल द चेंजेस शुड बी अवेलेबल, शुड बी डन इन दिस डेटा फ्रेम ओनली इन प्लेस। यस, इसी जगह करने चाहिए सारे चेंजेस को, इसी डेटा फ्रेम में सब रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अब देखिए पहले इस बार 20151617 था, ईयर नेम चेंज हो गए हैं एंड इवन रो नेम्स आल्सो हैव बीन चेंज्ड। ठीक है, तो रीनेमिंग वी हैव डन। नाउ द न्यू टॉपिक इज, अच्छा एक बात और, 16 अगस्त से आप लोगों के फर्स्ट क्लास टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। द सिलेबस इज कंप्लीट सीरीज, तो सीरीज ऑब्जेक्ट है वो सीरीज कंप्लीट आएगा और उसके बाद जिस अप टू रीनेम, ठीक है, डेटा फ्रेम के अंदर रीनेम तक हम लोग उसको पढ़ेंगे, रीनेम तक हम इसको पढ़ेंगे मतलब एग्जाम में आएगा। और एग्जाम से पहले मैं कुछ और, हाँ बोलिए। यस जानवी सर, आप कोई नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? बेटा देखो ये जो मैंने बनाए हुए ना ये हमारे अच्छा एक बात और मैं करता हूँ, हमारी जो इसकी एनसीईआरटी की बुक्स है ना, देखिए आप, मैंने आपको शेयर किया, पूरा लिंक भी शेयर किया हुआ है और उसकी जिप फाइल भी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की हुई है, एनसीईआरटी की आईपी बुक। तो यू शुड गो विद दैट बुक, इट इज टोटली व्हाट स्ट्रिक्टली व्हाट ऑन बेस्ड ऑन सिलेबस, नो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा एग्जांपल पॉइंट इज गिवन इन दैट बुक, तो उसको आप रेफर करो। सर फिर से भेज देते सर, मैं अभी आया था ग्रुप में तो पहले का डाटा है नहीं मेरे पास। ठीक है, मैं उसको एक बार फिर से शेयर कर दूंगा एनसीईआरटी की बुक को। और एग्जाम से पहले हम लोग एक बार एग्जाम हाँ बोलो। कब से? 16 से 16 अगस्त से, अभी डेट शीट फाइनल नहीं हुई लेकिन हाँ इतना है कि 16 से है। एक मिनट ग्राफिक कॉलेज है बेटा। मॉर्निंग सर। संदीप सर, सर मैं अभी क्लास में था, जरा मैं क्लास करके बात कर लूं? नहीं, एक सेकंड, मैं आपको है ना ये क्लास हाँ तो 16 से स्टार्ट है आपके फर्स्ट क्लास टेस्ट, या जो प्री मिड टर्म से बाकी क्लासेस के हो रहे हैं। और सर वैसे जैसे पहले सर कॉपीज में लिख के हम लोग भेजते थे सर, वैसे ही भेजना है क्या? क्या अच्छा अभी हम ये लोग, हाँ इस बार क्या है कि देखो जो एग्जाम्स है ना आपके, क्योंकि इस सेशन से सीबीएसई बोर्ड ने एग्जाम्स का पैटर्न चेंज कर दिया है। आपके एग्जाम्स टर्मिनल वाइज होंगे, सेमेस्टर वाइज होंगे, और पहले सेमेस्टर के लास्ट में जो एग्जाम्स होगा दैट वुड बी टोटली एमसीक्यू बेस्ड। तो अभी एग्जाम्स किस तरीके से होंगे मैंने अभी ब्लूप्रिंट नहीं बनाया हुआ है, बस विद इन 1 और 2 डेज आई विल सेंड द मैसेज कि क्या ब्लूप्रिंट होगा। जस्ट गिव मी ओनली 1 डे और बाय इवनिंग आई विल ट्राई टू सेंड द ब्लूप्रिंट बाय इवनिंग। तो किस तरीके से होगा, लेकिन क्योंकि टर्मिनल 1 में एग्जाम्स एमसीक्यू बेस्ड होंगे तो शायद सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे। ठीक है बच्चों, और एमसीक्यू में क्या आएगा, मोस्टली यही आएगा, कोडिंग आपको दी होगी उसका आउटपुट क्या होगा, या आपको कोडिंग दी होगी उसमें क्या एरर्स हैं या सिंपल कॉन्सेप्ट्स क्या है। अगर एमसीक्यू में ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे क्वेश्चंस आपको दिया उसकी कोडिंग करने को होगी, और कोडिंग हमें करनी भी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि सेमेस्टर 1 के लास्ट में जो एग्जाम्स होने हैं तो दैट विल बी टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर। ठीक है क्लास? हाँ जी बोलो बच्चों, आगे बढ़े। सर कितने मार्क्स का होगा टेस्ट? कितने मार्क्स का होगा टेस्ट, हाँ ये भी एक पॉइंट है अभी। ये अब हाँ बेटा लास्ट ईयर आई व्हाट आई थिंक योर फर्स्ट क्लास टेस्ट वाज ऑफ 40 मार्क्स, तो इस बार भी 40 मार्क्स का ही होगा। और एक मेरा सजेशन आप लोगों को, एक एडवाइस है, अभी जिन बच्चों ने लास्ट ईयर मतलब इस साल 10th का जिनका रिजल्ट आया है, so what they throughout the year they thought कि what will do, what will perform in final, will perform in the board exams,
and throughout the year they did not appear properly, or they did not prepare properly for the exams. They skip internal exams, they skip their pre-boards. So the students who were very bright students, but they took all the exams very casually, they suffered a lot in the final exams. They suffered a lot in board exams, because the criteria was 30 plus 30 plus 40. 30% weightage was given to 9, 30% weightage was given to internal exams conducted by schools, and the 40% percentage given for the pre-board. तो जिन बच्चों ने सोचा कि यार ये तो इंटरनल है, हम बोर्ड में अच्छा करेंगे, जिन्होंने सोचा कि यार तो प्री बोर्ड है, कोई बात नहीं, प्री बोर्ड को छोड़ देते हैं, या ठीक है ऐसे ही करते हैं, बोर्ड में अच्छा करेंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है. और what I know, lots of students from my house, from my class, yes, what they could perform literally very well, but they performed poorly. बहुत ही मिजरेबल उनकी कंडीशन है. 70 65 उन्होंने स्कोर किया हुआ है. So it is my suggestion to all of you, please take each and every exam very seriously. What don't know कि in future on what criteria your marks will be decided. ये एग्जाम्स किस तरीके से होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं तो उसमें क्या भी क्राइटेरिया रहता है. So it is my suggestion to please attempt all the exams very seriously with full preparation. Okay, now the next topic is Boolean indexing. ठीक है, indexing, as you know, indexing means giving rows name is called indexing. जब हम data frame बनाते हैं, so there are the two most important components are indexing and column names. So how can we do indexing on the basis of Boolean values? And can anyone tell me what is the meaning of Boolean? True and false. Very good, excellent answer. The true and false. That means we can categorize, we can group our data frame values, complete data, the huge amount of data, into two categories, either true or false. And as you know, we depict true by 1, we depict false by 0. So either we can go for true or false or 1 or 0. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इंडेक्सिंग करेंगे डेटा फ्रेम की. दैट मीन्स विल असाइन रो नेम as Boolean values, so that we can easily categorize, so that we can easily group the data frame values. Boolean indexing, as the name suggests, means having Boolean values, true or false or 1 or 0, as indexes of a data frame. अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो रो के वैल्यूज थे ना, डिफरेंट वैल्यूज वर देयर, Q1, Q2. as you can see in this example, these are the indexes, Q1, Q9999, Q2, Q3, August. So what now we are going to learn, how can we set either true or false or 1 0 in the indexing. You must be wondering why, what is the need for having indexes at true or false, so that we can group them, we can filter them. हम कुछ ऐसा हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ट्रू वाली वैल्यू एक साथ हमारी डिस्प्ले हो जाए और फॉल्स वाली वैल्यू हमें एक साथ डिस्प्ले हो जाए. तो डेटा का फिल्ट्रेशन के लिए इट वुड बी वेरी ग्रेट हेल्प फॉर अस. The Boolean indexes divide the data frame in two groups, the true rows and false rows. This is useful division in situations where you find out things like on which days the online class are held, or which ones are offline classes are days, and so on. So Boolean indexes can either be true or false or 1 or 0. ठीक है, अब इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इसको हमें करना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Boolean indexing. What is the meaning of Boolean indexing? When we set either true or false in indexing, when we set true or false for the row names, it is called Boolean indexing. Creating data frames with Boolean index. So let's first create a data frame with Boolean indexes, true or false. While creating a data frame with Boolean indexes, true and false, make sure that the true and false are not enclosed in quotes, because these are the Boolean values, these are not the strings. तो हमको true और false को single quotes या double quotes में नहीं रखना है, like this. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि these are the Boolean values, these are not string values. Otherwise it will give you an error.
अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमें की एरर मिलेगा, ठीक है। नाउ द एग्जांपल इज गिवन हियर, this is the days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. It is a list, as you can see. Then classes, it is another list, and by using these two lists we have created this DC. अब ये DC क्या है बताइए मुझको, ये DC किसका एग्जांपल है? You can see its syntax. We are creating this new object by using this days list and classes list. This DC is list, tuple, array, series, data frame. क्या है ये? ये DC है टू डायमेंशनल डिक्शनरी। आपको मालूम है जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो डिक्शनरी कैसे बनाते हैं हम लोग? कर्ली ब्रेस से बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? कर्ली ब्रेस से, ठीक है। और कर्ली ब्रेस के अंदर हम क्या रखते हैं? डिक्शनरी की वैल्यूज, की और वैल्यूज के अंदर पेयर रखते हैं। तो ये की बन गया और ये भी की है। डेज क्या है? डेज इज वैल्यू, और लेकिन वैल्यू के प्लेस पर हमने क्या दिया हुआ? लिस्ट हमने पास किया हुआ। यू कैन सी डेज इज द नेम ऑफ लिस्ट एंड क्लासेस इज द नेम ऑफ लिस्ट। तो व्हेन वी पास लिस्ट इन द वैल्यू, सो इट बिकम्स 2D डिक्शनरी। इसको हम क्या बोलते हैं? 2D डिक्शनरी। एंड देन फ्रॉम दिस 2D डिक्शनरी वी आर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम क्लास df by using which function? डेटा फ्रेम फंक्शन। हमने इसको पास कर दिया और ये हमने इंडेक्स दे दिया, ठीक है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, इस तरीके से। तो यू कैन सी, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बूलियन इंडेक्सिंग, सिंपल एग्जांपल ऑफ बूलियन इंडेक्सिंग। हाउ इज इट द एग्जांपल ऑफ बूलियन इंडेक्सिंग? because in the index value, because in the row index values true false are given, and the most important thing is that when we are providing the indexes, so what we don't close these values in single quotes। जैसे यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को सिंगल कोट्स में एनक्लोज किया हुआ है, लेकिन हमको इन वैल्यूज को सिंगल कोट्स में एनक्लोज नहीं करना है। एंड द रीजन बीइंग व्हाट? दीज आर बूलियन वैल्यूज। इट इज कॉल्ड बूलियन इंडेक्सिंग। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके हम लोग देखते हैं एक बार। न्यू फाइल, ठीक है। फिर d इज इक्वल टू t फॉर डेज, and the next dictionary classes, उसको हमने कर दिया CLAS is equal to 1 2 3 4 8। now second dictionary, सॉरी जो लिस्ट है 2D डिक्शनरी, डिक्ट 1 हम कर देते हैं इसको। एंड क्या हमने करा, यहाँ पर वैल्यू के रखिए डेज के लिए, डेज कॉलन, देन नेम ऑफ डिक्शनरी, कॉमा, एंड दी व्हाट? क्लासेस कॉलन CLAS, ठीक है। सो वी हैव क्रिएटेड दिस 2D डिक्शनरी। यहाँ पे ये जो हमारा ये फर्स्ट वाली क्या होती है? की होती है, कीज, ये भी की है, ये भी की है, लेकिन वैल्यू हमने क्या दिया हुआ है? इन द वैल्यू वी हैव प्रोवाइडेड द नेम ऑफ लिस्ट। लिस्ट का नाम क्या है? D है। इस एग्जांपल में लिस्ट का नाम क्या है? CLAS, ठीक है। अब इस बाय यूजिंग दिस 2D डिक्शनरी नाउ वी क्रिएट डेटा फ्रेम। df is equal to pd dot data frame and simply the pass the name of dictionary DICT1,
एंड देन इसको डिस्प्ले कराते हैं हम लोग, प्रिंट माई सिंपल डेटा फ्रेम इज कॉमा df, इसको सेव करते हैं, इसको सेव कर दिया हमने बूलियन इंडेक्सिंग के नाम से। तो in this what through this statement we are creating the data frame। सबसे पहले हमने एक लिस्ट लिया d, फिर हमने एक और लिस्ट बनाई क्लास नाम से, and by using these two dictionaries we created this two dimensional dictionary। ये लिस्ट है अलग, आपको पता है जब हम लिस्ट बनाते हैं तो किससे बनाते हैं लिस्ट, by using the square brackets। लेकिन जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो इस पर सारे जो एलिमेंट्स हैं डिक्शनरी के वो किसके अंदर होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरीज वी पुट देम इनसाइड द व्हाट दिस कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, और ये क्या है, डिक्शनरी है। लेकिन डिक्शनरी तो है, लेकिन किस टाइप की डिक्शनरी है, इट इज 2D डिक्शनरी। 2D डिक्शनरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट के अंदर वैल्यूज में हमने लिस्ट पास की हुई है। क्या पास की हुई है, लिस्ट हमने पास की हुई है। अब इस 2D डिक्शनरी को यूज करके हमने एक डेटा फ्रेम बनाया df नाम से, pd the alias name of pandas, then data frame function, and we simply pass the name of 2D dictionary in this function। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जब हम इस डेटा फ्रेम को हम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने इंडेक्स पैरामीटर पास नहीं करा है। जब इंडेक्स पैरामीटर हम लोगों ने पास नहीं करा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पाइथन ऑटोमेटिक इंडेक्स देगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and 1 एंड वी कैन चेक इट आल्सो। ठीक है, ये देखिए डेज आ गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, एंड दीज आर द क्लासेस 5th 6th 7th 8th, and these are the default indexes 0 1 2 3, but we have to set boolean indexes for our data frame so that we can what categorize them in two categories, true and false। ये हमें पर्पस है कि हम उसको सीधे एक बार में ग्रुपिंग कर दें। तो क्या करेंगे, जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं उसी समय हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू विद इन दिस ट्रू, ठीक है, फॉल्स, ट्रू एंड देन ट्रू। So it is up to you कि for which row you want to set a true value, for which you want to set a false value, इस तरीके से। And one more important thing, these values should not be enclosed inside the what in single bracket or double bracket। मतलब कोट्स हमें नहीं देने, हमें कोट्स नहीं देने यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप इनको यहाँ पर सिंगल कोट्स में क्लोज कर दें, ये सब इसमें नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, these are the boolean values। इसको रन करते हैं हम लोग, it is showing what true, ठीक है, tr false, ठीक है। So what earlier the indexes were the default indexes set by Python 0 1 2 3, and now we have set Boolean indexing। So this concept may come, what do you understand by the Boolean indexes, or the which values we give in Boolean indexing। So there may be options true, false, 1 0 1 2 2 1। तो बस इतना पता होना चाहिए, उससे भी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। Boolean indexes में either we give true और false, या फिर हम लोग क्या देते हैं 1 या 0। और आप चाहते हैं कि हमें 1 0 देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने किया 1, देन इसको हमने कर दिया 0 एंड देन 0 एंड देन अगेन 0। दैट मींस only one row has only one value has true value, one जो एक ही रो के पास केवल ट्रू इंडेक्सिंग है, बाकी में क्या है, सब फॉल्स है। देखिए 1 0 0, it is called Boolean indexing। It is called Boolean indexing। That means the Boolean indexing, as the name suggests, means having Boolean values true, false or 1 0। Okay, and और तरीका क्या है उसका, केवल आप जब इंडेक्सिंग मैनुअली सेट करेंगे तो या तो वहां पे true false देंगे या क्या देंगे 1 0 देंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है, so you can also provide Boolean indexing to data frame as 1 and 0। Yes, we have done this also। Let us create another data frame similar to the above shown data frame
having indexes 1 and 0. Now in this example earlier यहाँ पर हमने true false दिया था, लेकिन इस बार हम लोग क्या दे रहे हैं? This time we are giving 1 and 0. This time we are giving 1 and 0. केवल इस एग्जाम्पल में ट्रू फॉल्स सेट किया गया है, इस एग्जाम्पल के अंदर 1 0 सेट किया हुआ है। अब हाउ कैन वी एक्सेस द रोज एंड वैल्यूज व्हिच हैव ट्रू और फॉल्स? Accessing rows and from data, accessing rows from data frame with boolean indexing, it is the uses, it is the advantage of boolean indexing. भाई क्वेश्चन है कि हम boolean indexing क्यों करें, क्या फायदा? As I told you earlier, what grouping के लिए क्या यूज करेंगे हम? ग्रुपिंग के लिए। अब देखिए हमने करा, ये हमारा डेटा फ्रेम है, ठीक है। अब हम ग्रुपिंग का फायदा इसका पता लगेगा कि क्या इसका बेनिफिट है। Print and by using which function? LOC function, LOC function, ये हमने कर दिया ट्रू, या अभी 0 लिखा 1 करते हैं 1, ठीक है। Now run it. It is our complete data frame. It is our original data frame. These are the 2 columns and these are the 4 values, and the 4 rows have what? Boolean indexes 1 0 0. But we want to display only the row where the index is true, where the index is set on 1. तो हमने क्या करा? Print the name of data frame, then LOC function, and this simply the value for row index. हमने कहा कि केवल उन रो को डिस्प्ले करो जहां की इंडेक्सिंग क्या है? 1 है। तो आप देख सकते हैं हमारे इस डेटा फ्रेम के अंदर केवल एक ही रो ऐसी है जिसकी इंडेक्सिंग 1 है, क्लासेस, और ये क्या है? 5, ठीक है। डे उस रो के लिए डेज क्या है? मंडे है, क्लासेस कितनी है? 5 है। इसको चेंज करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें उस डेटा फ्रेम के अंदर हमें केवल उन वैल्यूज को देखना है जहां पर इंडेक्सिंग 0 है, जिनकी इंडेक्सिंग बूलियन इंडेक्सिंग 0 है या फॉल्स है, ठीक है। तो इस टोटल हमारे डेटा फ्रेम में 3 वैल्यू रोज इस टाइप की हैं। रन किया इसको, यू कैन सी 0 0 0, और ये 3 इंडेक्सिंग आउट ऑफ 4 what are there which have 0 indexes, Tuesday, Wednesday, Thursday, और 6 7 8 ये क्लासेस और डेज की वैल्यूज है, एंड these are their index. So it is the beauty of boolean indexing. आप boolean indexing से डेटा फ्रेम को इजीली एक्सेस कर सकते हो। यू कैन डिवाइड द डेटा फ्रेम इनटू 2 कैटेगरीज। सो बूलियन इंडेक्सिंग इज वेरी यूजफुल फॉर फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स, दैट इज फॉर फाइंडिंग और एक्सट्रैक्टिंग द ट्रू और फॉल्स इंडेक्स रोज। यू कैन फिल्टर आउट रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटा फ्रेम विद बूलियन इंडेक्सेस यूजिंग द LOC एट्रीब्यूट। आप LOC को यूज करके व्हाट वी कैन डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स। सबसे पहले क्या करना है? डेटा फ्रेम का नेम लिखना है, देन LOC फंक्शन यूज करना है, और इधर ट्रू और फॉल्स और 1 और 0, ठीक है। स्टूडेंट्स कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट के अंदर? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट किसी को कि व्हाट इज द यूजेस, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बूलियन इंडेक्सिंग, हाउ डू वी यूज इट? नो सर। इसको क्यों यूज करते हैं? सो सिंपल है ना। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? या तो हम जानते थे डिफॉल्ट इंडेक्सिंग, अगर हम इंडेक्सिंग नहीं करेंगे, इसको हम हटा देंगे तो 0 1 2 से स्टार्ट हो जाएगा, और वी हैव एक्सक्यूज मी। या फिर हमने पढ़ा था मैनुअल में कुछ और हमने कर दिया, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ इस प्रिंट वाले को, और एक तरीका याद है कि आप इंडेक्सिंग को अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते थे। हमने यहाँ पे लिख लिया, सपोज करो इंडेक्सिंग हमने कर दी टीचर के नाम पे, ABC टीचर, कॉमा XYZ टीचर, कॉमा MNO टीचर, कॉमा और PQR टीचर। अब डिस्प्ले कराएंगे तो क्या होगा? ये इंडेक्सिंग बन गई हमारी, ये हम पढ़ते हुए आ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती हैं जहां पर हमें डेटा फ्रेम को केवल 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, बच्चे प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हर साल नीट में, IIT JEE में, CA में बहुत बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें कुछ बच्चे एब्सेंट भी होते हैं। तो अभी हमें केवल क्या करना है? हमें देखना है कि क्या कौन बच्चे एब्सेंट थे और कौन बच्चे प्रेजेंट थे, उनको हमें कैटेगराइज करना है। जिनको प्रेजेंट था उनको हमें कंसीडर करना है, और जो एब्सेंट थे उनको कंसीडर नहीं करना है। तो क्या करेंगे उस केस में? हम सभी बच्चों के डेटा को इंडेक्सिंग कर देंगे। 1 0 0 मतलब 1 मतलब प्रेजेंट, 0 मतलब एब्सेंट, इस तरीके से इसे बोलेंगे बूलियन इंडेक्सिंग। तो आप चाहे तो 1 0 कर सकते हैं, और आप चाहे तो ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं। अब ये करेंगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा।
या ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं। तो इट इज द मेन एडवांटेज ऑफ बूलियन इंडेक्स। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना काफी था। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।